So let's hear a round of applause at this note for the success of this gentleman out here. Let's have a round of applause, a loud one. Well, 5G Entertainment forays into the entertainment industry with its production house, with its maiden venture, Bhai. And we have our director of the movie with us. But first I would like to welcome Mr. Sachin Katarnavre to this function first formally. Thank you so much for this lovely function. And now I would like to introduce the director of this Marathi film, Bhai, Rahul Bhatankar. Can we have him here on stage? Oh, there, please. Please take the center stage. And we have our artists, our actors and actress of this film, Smitha Gonkar. Smitha Gonkar, oh there she is. Can you be a little louder and warm in applause? तालियों से आंखें तंदुरुस्त और पेट साफ रहता है. You should always keep clapping. It keeps you really very healthy, wealthy and wise. And our actor Abhijit Khandelkar. Abhijit Khandelkar. He's not there? Okay, he's busy in his shoot. Satish Rajwade. Satish ji. And Vineet Sharma. And I would like all of you to please take a photo op with this. We are going to have an unveiling. We are going, yeah, right behind us. I'll just take my position here so it's more clear. Yes. But would you like them to speak first? Yeah, let's go ahead. Sachin ji, we would like you to have your viewpoint as a producer of this movie. आपको कैसा लगा और आपको कैसा लग रहा है with the release of this movie and your first maiden venture? What are your feelings? We would like to hear that. Thank you, Sachin ji. And this is my first film. And by the grace of God, सब कुछ अच्छा हो रहा है. And the next month we're going to release this film. And Mr. Rahul is the captain of this film. So तो हम शिप को सेल करके लेके जाते हैं कैप्टन की तरफ, बिकॉज कैप्टन के बगैर एक शिप जो है लावारिस हो जाती है. सो कैप्टन साहब, आपने ये मूवी को बनाने में कितने एफर्ट्स किए और क्या आपको आपका एक्सपीरियंस रहा, आर्टिस्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, प्रोड्यूसर के साथ? प्लीज वी वुड लाइक टू हियर अबाउट फ्रॉम यू. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन जी हैप्पी बर्थडे. एंड भाई इज माय सेकंड फिल्म. ये मेरी सेकंड फिल्म है. एंड हैट्स ऑफ टू सचिन सर कि ये जो सब्जेक्ट था 2 years बैक आई वेंट टू हिम, 6 स्क्रिप्ट लेके गया एंड दैट वाज माय दिस वुड हैव बीन माय फर्स्ट फिल्म. वो 6 स्क्रिप्ट्स में से इन्होंने ये स्क्रिप्ट चुनी एंड इट वाज चैलेंजिंग एंड ही एक्सेप्टेड द चैलेंज. और दिस फिल्म इज अबाउट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया. इट्स अबाउट साइको थ्रिलर. दिस फिल्म डजंट हैव हॉरर एलिमेंट्स. इट्स अ नॉन लीनियर फिल्म. It's about human fear. It's about fear meeting fear. In today's world, आज की दुनिया में हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ की एक डर है. ये फिल्म वो डर के बारे में. मेरे जो राइटर है नितिन सुपेकर, जब वो स्क्रिप्ट लेके आए मेरे पास, आई फेल्ट इट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ये जो कैरेक्टर दिखाना है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, देयर आर वेरियस टाइप्स. There are 9 to 10 types of this paranoid schizophrenia patients. Some have a feeling that like कुछ conspiracy हो रही है उनके साथ. किसी को लगता है they create their own world, सब वर्ल्ड जहाँ पे उनको लोग दिखते हैं. And कुछ लोग अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं. They start feeling कि उनको कोई मारने आएगा. They create their own world. और हर एक इंसान में एक फेयर होता है. इन लोगों में कुछ ज़्यादा होता है, 20 to 30% बढ़ता है. फ्यू ऑफ देम कमिट सुसाइड. हम ऐसे लोगों को हमेशा कहते हैं कि पागल हो गया है या भूत ने पकड़ लिया. ये कुछ नहीं है. इट्स माइंड गेम एंड इट्स क्यूरेबल. सो दिस फिल्म ऑल्सो गिव्स होप. या इट्स हैज़ थ्रिलर एलिमेंट. एंड मराठी फिल्म में एक प्लस पॉइंट है, 80% बर्डन कम हो जाता है आर्टिस्ट की वजह से. They are so polished, like they come from theatre background जहाँ से start होता है, then they do serials and then films. So it's very easy for a director. एक बार उनको scene समझा दिया, then from all the angles वो xerox copy होते हैं. Their emotions, their dialogues, their performances and बहुत ही friendly atmosphere था. और टाइम बड़ा वाइट से लेके भाई फिल्म तक मेरे जो DOP हैं राजेश राठौड़,
ही वॉज माई बैकबोन फर्स्ट फिल्म से लेके अभी तक। सतीश राजवाड़े सर जो मेरे आर्टिस्ट हैं, ही हिमसेल्फ इज़ अ डायरेक्टर। उन्होंने खुद बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की है। ही हिमसेल्फ इज़ एन आर्टिस्ट, सीरियल्स भी डायरेक्ट किए हैं। एंड देन विनीत शर्मा, इनको हमने अपने फिल्म्स में कॉप के रोल में देखा है, एंड इन दिस फिल्म ही इज़ प्लेइंग अ गैंगस्टर एंड ही टुक दैट चैलेंज और बहुत ही मज़ा आया। एंड अगेन स्मिता इज़ फेमस फॉर हर वीडियो पप्पी दे सॉन्ग, एंड इन दिस फिल्म शी इज़ नॉट डांसिंग बट शी हैज़ डन स्टंट्स इन दुबई, जो बोट पे गाना किया था। थैंक्स टू अगेन सतीश सर, सचिन सर, जिन्होंने ये गाने शूट करने के लिए दुबई में परमिशन दी है एंड प्रोड्यूस इट। एंड बहुत चैलेंजिंग था, 48 डिग्रीज में हम लोगों ने शूट किया। एंड देयर वर 2 बोट्स एंड एट द एज ऑफ द बोट शी वाज स्टैंडिंग एंड शी वाज परफॉर्मिंग, एंड मैं दूसरी बोट में था एंड आई वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हर लाइक वेविंग, अभी ये करना है, अभी वो करना है। शी वाज सो इंस्टेंट लाइक, एंड विल सी दैट सॉन्ग promo of it. And Abhijit Khandkekar, my hero, he has done brilliant job because क्या होता है कि ये चैलेंज है उसके लिए भी, टू परफॉर्म अ पेशेंट जो हर एक चीज़ को डरता है, जो थ्रू आउट द फिल्म दैट फेयर हैज़ टू बी देयर, एंड ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. एंड अगेन देयर इज वन कपल in this film, and Sanskruti Balgude, Siddharth Godke, and rest Uday Kitekar and everyone, and thanks to Sachin sir for producing this film. And नमस्कार, आत्ताच मी बाहेर इंटरव्ह्यू दिला मराठीत, आता इथे मिक्स क्राऊड आहे आपला, सॉरी म्हणून हिंदी. इट्स ओके. माझं नाव राहुल वातणकर, येस ओके. मी 16 वर्ष एडिटर होतो. टाईम बरा वाईट हा माझा पहिला पिक्चर जो नुकताच रिलीज झाला. भय हा दुसरा चित्रपट आहे आणि सचिन खटारनवरे हे आमचे प्रोड्युसर आहेत. 5Gen इंटरनॅशनल प्रेझेंट करते, त्यांचीच कंपनी आहे. आणि नेक्स्ट मंथ होपफुली आम्ही हा पिक्चर रिलीज करू. आणि भय चित्रपट जसं मी आता हिंदीत म्हणालो, इंग्लिशमध्ये 2 वर्ष आधी मी त्यांच्याकडे घेऊन गेलो आणि त्यांनी हे चॅलेंज एक्सेप्ट केलं माझ्यासाठी की तू हा चित्रपट कर, हा चॅलेंजिंग आहे, रेस्ट ऑडियन्स डिसाईड करेल. आणि एवढा कॉन्फिडन्स आला त्याच्यामुळे मला की बजेट वाईज काही मला टेन्शन नव्हतं. आर्टिस्ट माझे सगळे मराठी आर्टिस्ट होते, त्यात विनीत शर्मा हे एक हिंदीतले आर्टिस्ट आमचे जे नेहमी कॉपच्या भूमिकेत असतात, ह्यात ते भाई बनलेत आणि हे त्यांच्यासाठी चॅलेंजिंग होतं. स्मिता गोंडकर, तिच्यासाठीही चॅलेंजिंग होतं, एक वेगळे काहीतरी भूमिका करूयात, डान्स नको करूयात ह्यात. आणि सतीश राजवाडे सर हे लास्ट फिल्ममध्ये पण होते माझ्याबरोबर आणि ह्या फिल्ममध्येही आहेत, आणि ते एन्काउंटर स्पेशलिस्टच्या भूमिकेत आहेत. त्याच्यानंतर सिद्धार्थ बोडके, संस्कृती बालगुडे, उदय किटेकर आणि वेरियस 35 आर्टिस्ट आहेत. खूपच वेगळा प्लॉट आहे हा तुम्ही सायको थ्रिलर म्हणू शकता. सायको हा वर्ड थोडा रॉंग आहे, इट्स अबाउट फेअर. थ्रिलर म्हणू शकतो आपण त्याला. त्याच्यात सस्पेन्स आहे. आणि अभिजित खांडकेकर ह्यांनी खरंच ब्रिलियंट काम केलं आहे. त्यासाठी हा खूपच चॅलेंजिंग रोल होता आणि हा चॅलेंज त्यांनी मी ॲक्सेप्ट केला आणि त्यांनी माझं काम ॲज अ डायरेक्टर खूप इझी केलं. Thank you so much. मैं अजय जी को तो बोलना ही भूल गई. I would like to welcome Director 5G International, Mr. Ajay Joshi. हमारे प्लीज आगे आइए सर, प्लीज come here. Thank you. And अब हम अपनी एक्ट्रेस से पूछेंगे उनको कैसा लगा, how did she feel about acting in this movie? If it is a psycho thriller, what were your feelings and how innovative and creative were you when you were playing this role? आपको कैसा लगा? First of all, I would like to thank my producer, Sachin Khatar, for producing this film and giving a very different treatment to all the actors and the unit. I think it's the first time we were shooting in Dubai. I'm sorry to be there, but the first time we were shooting in Dubai, but the way he treated each one of us, each one of the technicians, it's very warming and heart-touching. Thank you for giving us that treatment, that luxury, that attention and that pampering in Dubai. Then secondly, I would like to thank our director, Rahul Batinkar, who is an excellent editor himself, and
working with him becomes very easy because he knows what exactly he wants and he's very clear in his thoughts. And the way he explains his scenes is so easy. It makes it so easy for us. So it was a delight. It was an absolute learning experience and a beautiful experience working with him. About this, my role in this film, I'm playing wife to Abhijit Khandkekar. He's suffering from paranormal schizophrenia, and a person who, what happens is when these people react differently, people around them don't really understand them properly. But here, being a wife, I love him a lot, so I have to be understanding and I know about the situation. The way I deal with the situation is very different. There's a lot of mixed emotions in this movie because there's so many different things, there's so many layers of emotions. So I think it was very different for me to portray this character because yeah, people have been seeing me dancing and doing a lot of comedy flicks, but this is different for me. And I thoroughly enjoyed the entire filmmaking process. Lovely actors, co-actors working with us, and a lot of gratitude because we could learn and pick up a lot of things. So I think I will end up my 2 words here and had a lovely experience working here with this youth. त्याच्याबद्दल आम्ही सगळे मनापासून आभारी आहोत आणि खूप प्रेम मिळतंय तुमच्याकडून आणि मराठीत बोलायला मलाही खूप आवडतंय. आपण अजून सविस्तर अजून जास्त मराठीत बोलूया. इन शॉर्ट मी इंग्लिशमध्ये हेच म्हणाले की माझे ते आभार मी आमचे प्रोड्युसर आहेत सचिन सर आणि आमचे डिरेक्टर्स राहुल सर, मी माझे आभार व्यक्त केले कारण मला या चित्रपटात त्यांनी घेतलंय आणि काम करताना खूप मजा आली. हेच असं एक्सप्लेन केलं, हेच एक्सप्रेस केलंय. धन्यवाद. आता आपण अजून गप्पा मारूया मराठीमध्ये. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. अब I would request Vineet Sharma ji to please say a few words about the movie, आपके experience, आपके क्या भावनाएं थी, कैसा लगा आपको काम करके. मराठीमध्ये तुम्हाला एक प्रयत्न करतो बोलायची. हा माझी सेकंड फिल्म आहे. पहिली मी गुलाबी केली होती सचिन सर खेडेकर बरोबर, तर हे एक वेगळा एक्सपिरियन्स होता त्यांच्याबरोबर. आता हे माझा दुसरा एक्सपिरियन्स आहे. राहुल सरांनी माझ्यामध्ये ट्रस्ट केला. याला या कॅरेक्टरमध्ये मला मेन विलन म्हणजे एक भूमिका मला करायला मिळाली याचा, तर वेगळा एक्सपिरियन्स होता कारण मी चेंबूरमध्ये मोठा झालो आहे. तर माझ्या आजूबाजूला नेहमीच ते मी भाई बघितले आहे, तर ते स्वतः आला म्हणजे जास्त एफर्ट लावला नाही त्याचा ते परफॉर्म करणार, तर ते आला आणि ते भाई तुम्हाला दिसणार तसं ते तिकडे. आणि आय होप तुम्ही तिकडे जाऊन एन्जॉय करणार ते भाईला जे मी प्ले केलं आहे. चेंबूरातलाच भाई आहे कुठेतरी, कोणाला तरी मी उतारला आहे माझा आतमध्ये आणि ते तुम्ही एन्जॉय करा. थँक्यू. Cop's role to gangsters, थोड़ा English में for the English media mixed media also. It was a brilliant experience for me because normally always there is a call whenever next phone call comes they always call me for a cop and all because they have seen me as a very effortless cop. They always say you look like a cop. In fact, even the Mumbai so-called police they have accepted me as a cop. So this is the first time I'm playing a gangster now. So I hope I could portray that उतनी ईमानदारी से उतनी honesty से मैंने प्ले किया है, तो आप लोगों को मजा आएगा. You all will enjoy that and that's what I hoping. Thank you so much. जी हाँ, कॉप बनने में जितनी ईमानदारी लगती है उतनी ही एक विलन बनने में भी लगती है. माशाल्लाह, very nice. And now Satish ji, we would like to hear your experience. आपकी क्या feelings थी इस मूवी में पार्ट लेके? नमस्कार. मला खूप अभिमान आहे की मराठी मीडियाबरोबर इंग्लिश आणि हिंदी मीडियासुद्धा आज आमच्या फर्स्ट लुकला आणि लॉन्चला आला आहे आणि त्याचं सर्व श्रेय मी आमच्या PR ना आणि आमच्या निर्मात्यांना देतो. एकतर तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा सर. राहुल पाटणकर बरोबर माझा दुसरा चित्रपट, त्याची क्लॅरिटी एक दिग्दर्शक म्हणून आणि स्टोरी टेलर म्हणून खूप मस्त आहे. ही इज व्हेरी क्लिअर अबाउट हिज थॉट्स व्हेन ही वॉन्ट्स टू टेल अ स्टोरी. मराठीतलं वाक्य परत इंग्लिशमध्ये बोलतोय सगळ्यांसाठी, त्यामुळे कन्फ्युजन नको आणि कोणाच्याही भावनाही दुखवायला नको. खूप आनंद होतोय असा एक चित्रपट फक्त भारतातच नाही पण आता भारताच्या बॉर्डर्सच्या बाहेर सुद्धा जाऊन एक निर्माता शूट करतोय मराठी चित्रपटाच्या प्रेमासाठी. वी आर ब्रेकिंग द बॅरियर्स अँड गोइंग अब्रॉड अँड शूटिंग सॉंग्स सो दॅट वी कॅन ॲब्सोल्युटली हायलाईट अँड एनरिच दी स्कायलाईन दॅट वी आर ट्राईंग टू शो इन मराठी सिनेमा. त्यामुळे तुमचं खरंच खूप खूप अभिनंदन. मी फार बोलणार नाही कारण सगळ्यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं. एव्हरीवन स्पोकन अबाउट दिस सिनेमा. रिअली एन्जॉयड वर्किंग विथ दिस युनिट अगेन. खूप मजा आली काम करताना. थिएटरमध्ये जाऊन नक्की हा चित्रपट बघा.
मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इसको, और आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि जब भी एक नया प्रोडक्शन हाउस लॉन्च होता है तो एक्टर्स के लिए खुशी की बात होती है, और हम एक्टर्स से सिर्फ अच्छी विशेस ही दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एंड हमारे तरफ से तो हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। इस मूवी के बारे में बात करें तो भाई मूवी है डरावना, जैसे हम लोगों ने कई हिंदी फिल्मों में भी कोई है, जैसे कई सारी हम लोग सीरियल मूवी भी देख चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है मराठी मूवी से? कितना एक्सपेक्टेशन होता है कि वही सटायर, वही डर जो एक नॉर्मल हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं वही हमें मिल पाएगा? एक्चुअली आई थिंक क्रिएटिविटी का कोई लैंग्वेज नहीं होता। मराठी ऑफ कोर्स हमारी जो इस मुंबई की भाषा है, तो मैं तो एक बहुत प्यार से देखता हूँ मराठी फिल्में, और हॉरर फिल्में भी मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप अहेड, एक नई चीज़ है। आप अगर देखोगे हाल ही में जितनी हॉरर फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं, they have made very good business, and Marathi films again with having the flavor of horror, मेरे ख्याल से it's a great and a brilliant idea. आज के दिन के लिए आप क्या आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज के दिन जैसे आज पोस्टर लॉन्च होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन स्पेशली? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और बस एक्सपेक्ट तो हर एक्टर काम ही करता है, और होपफुली इनके नेक्स्ट प्रोडक्शन में कुछ काम मिल जाएगा। एक्चुअली मैं यही पूछ रही थी, कभी अगर आपको मराठी फिल्म में अगर कुछ मौका मिले काम करने का, तो क्या आप करना लाइक चाहेंगे? एक्चुअली हाल ही की बात है, जस्ट लास्ट वीक मुझे एक ऑफ़र हुई है, मराठी फिल्म ही ऑफ़र हुई है, तो जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आई एम ओपन टू ऑल रीजनल सिनेमा एंड आई एम प्राउड। मराठी लैंग्वेज आपको सीखने में या बोलने में कुछ आपने प्रिपरेशन किया कि मैं कैसे डायलॉग लाइक पोर्ट्रे करूँगा, उस कैरेक्टर को किस तरह से क्या करूँगा? हाँ, यही चीज़ कन्फेस करनी पड़ेगी कि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादातर मैं हिंदी में कम्युनिकेट करता हूँ, पर आई नो ये चीज़ इंसान की फितरत है। अगर आप किसी भी चीज़ में मन लगाकर अपना फोकस करें तो आप अनइमेजिनेबल चीज़ें अचीव कर सकते हो, और मराठी भाषा जो है इतनी मीठी भाषा है, इतनी एक प्यारी भाषा है। मेरे शो पे भी, मैं जो एक शो करता था फैमिली नंबर 1, सारे सेट्स पे जो मेरी मॉम थी तन्वी आज़मी, वो मराठी बात करती है, मेरे डायरेक्टर समीर कुलकर्णी वो मराठी बात करते थे, तो उनके साथ इंटरेक्ट करते करते मुझे मराठी का थोड़ा बहुत तो एक होल्ड आया है, और आई होप अब इस फिल्म के बाद आई एम श्योर आई विल बी एबल टू स्पीक मच बेटर मराठी। थैंक यू। लाइक फिल्म की बात करें कि भाई, जैसे हम हिंदी में जिसे डर कहते हैं, तो डर की हम बात करें तो कितना मुश्किल होता है पर्दे पे डर को दिखाना और लोगों को एक्सेप्ट करना कि हाँ हम डर रहे हैं, या कोई ऐसी बड़ी रेसिपी? एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हमको लगता है हम डरा रहे हैं, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट, उनको डर नहीं लगता है। सो वी हैव टू ट्राई एंड सी ऑडियंस के दिमाग में क्या है और किन चीज़ों से मोस्टली लोगों को, और वो हम अपने अच्छे तरीके से ना पर्दे पे दिखा सकें। मोस्ट ऑफली जो सबसे कॉमन डर होता है जो लोगों का, भूत का, अंधेरे का, दोज आर थिंग्स दैट वी यूजुअली यूज़ टू शो अक्रॉस द स्क्रीन। भय के डर के बारे में बात की, तो क्या अभी आपने कभी भी ऐसे अपने पास में या प्रेजेंट में कभी ऐसा महसूस किया कि जहाँ पे आपको डर लग रहा हो, या किसी की परछाई या साया कुछ ऐसा आ रहा हो? मैं एक्चुअली सच बताऊँ हमेशा डरता रहता हूँ, बचपन से डर रहा हूँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। सो या आई थिंक हर इंसान में डर होता है किसी न किसी चीज़ का। कभी आप इस डर से कभी ऐसा कुछ ऐसा कोई मोटिवेशन आया जहाँ पे आपकी ये जो डर वाली जो फीलिंग है? नहीं, मैंने कोशिश किया है काफ़ी टाइम तक कि ना अंधेरे से वो डर निकालने बैठने के बाद वो जाता ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पे लास्ट आज सचिन जी का जो प्रोड्यूसर, उनके बर्थडे भी है, तो कुछ विशेष अपनी तरफ से देना चाहेंगे? I would like to wish the producer a very very happy birthday, and it's such a nice day that he's launching the film's poster too, and wish everybody best of luck. Thank you. आज भय पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक डरावनी नाम से ही पिक्चर है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो आई एम ग्लैड दैट ये नाम उनको मिल गया। द टाइटल इटसेल्फ इज़ कंप्लीट। भय, डर, अपने आप में ही कंप्लीट नाम है। 5G एंटरटेनमेंट और सचिन who's a close friend, good friend, I wish him all the best. Looking forward. बहुत कम बार आपको इतना छोटा, इतना कनेक्टिंग टाइटल एक शॉट में, जिसको हम कहते हैं एक झटके में आपको सब कुछ पता चल जाता है व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। कभी ऐसा कभी घर में रहे या कहीं पे रहे तो भय लगा आपको कोई चीज़ का? I'll be lying if I say no. हम सबको किसी ना किसी चीज़ का डर है।
मुझे भगवान का डर है। ऊपर वाले से डर है आपको? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या कहना चाहेंगे और चीज़ों के बारे में कि फिल्म अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट में बनाई जाती है तो फिल्म क्या चलने के काबिल होती है? इनफैक्ट ऑडियंस बहुत रिसेप्टिव हो गई है, नए नए जॉनर्स और नए नए सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोग। हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो बहुत समय के बाद वापस से हमारी इंडस्ट्री में आया है, which has been received very well. Alone was the last one. A lot of other Vikram Bhatt has proven. In fact, most of his films have been received very well by the audience. So I'm sure Bhai will also do well. Thank you very much. Thank you. Today we are releasing the first look, the poster of Marathi film called Bhai. Also we have our producer's birthday happening today. It's a good occasion for all of us to come together. And also let everybody know that we are starting our promotions and publicity soon, and we have Bhai coming up. Bhai is a Marathi film, and there are around 35 to 40 actors. ये बहुत ही अलग टाइप की किस्म की फिल्म है. This is I would say it targets the fear in every person. हर एक इंसान में कुछ ना कुछ fear होता है, और वो जब बढ़ जाता है तो एक इंसान क्या क्या फेस करता है या फिर वो सिचुएशन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा. पैरानॉर्मल सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है जो हमारे हीरो को हुई है, और हम लोग उस बीमारी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए उसके वजह से जो घटनाएं आजू बाजू हो रही है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. और इट इज़ अबाउट how he deals with his fears and how it keeps increasing. And I would not say, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये फिल्म is completely like a horror or anything. No, it's absolutely not. ये जो फिल्म है ये एक I would say इसमें ये इट्स थ्रिलर, इसमें सस्पेंस है, इसमें रोमांस है, इसमें कॉमेडी है, इसमें एक्शन है, और सारा एक अच्छा सा ब्लेंड है और बहुत अलग किस्म की फिल्म है. राहुल भटनकर हमारे जो डायरेक्टर है, ये उनका जो टाइप है मूवी बनाने का बहुत अलग है. उन्होंने एक मूवी बनाई है टाइम, ये उनकी सेकंड फिल्म है. वो खुद बहुत ही अच्छे एडिटर है, इसीलिए जो इनका एडिटिंग का सेंस है या फिर जो जिस तरह से वो स्क्रीन पे ले जाते हैं बहुत अलग है. तो मराठी के लिए और हिंदी के लिए भी ऑल्सो आई वुड से इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म एंड एवरीबडी वुड लाइक. हमारे जो प्रोड्यूसर है, हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी है, ये है 5 Gen इंटरनेशनल, जिसके प्रोड्यूसर है सचिन खटार. सचिन सर जो है एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है. इनफैक्ट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के प्रोड्यूसर्स आके मराठी फिल्में करते हैं, लेकिन सचिन सर ने पहले भी बहुत सारी हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की है. उनकी पहली फिल्म है, और हमने पहली बार मराठी मूवी को दुबई में शूट किया हुआ है, यानी गाने के जो पोर्शन है, गाने जो है जो हमने दुबई में शूट किए हुए हैं. एंड आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर कहीं पे भी हमें कुछ भी कमतरता नहीं हुई. एवरीथिंग वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. हमारा राइट फ्रॉम अ फ्लाइट्स to our stay, to our shoots there, everything was first class, like 5 star. And हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है. तो I think we are blessed to have producers like that coming into Marathi, and he being a Marathi himself, it's absolutely wonderful. Thanks, man. I don't know what kind of role you are playing in the film and what is the subject of the film? जैसा कि सब्जेक्ट अपने टाइटल से ही पता लगता है कि भय फिल्म का नाम है, तो इट्स लाइक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिक जो लोगों को एक होता है, एक किसी चीज़ का डर होता है. किसी को बाहर ट्रैफिक में निकलने का, क्रॉस करने का डर होता है, किसी को पंखा गिरने का डर होता है कि मेरे ऊपर पंखा नहीं गिर जाए. तो सिजोफ्रेनिक थोड़े से कुछ पेशेंट होते हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है. एंड आई वुड से लाइक कि सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें मैं एक विलन की भूमिका कर रहा हूँ. इसमें मेन नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें. तो सामने वाले आदमी को कई बार देख के कहीं आप बाहर किसी एक्सीडेंट को देख लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए. तो कई लोग को ये बीमारी होती है. तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द विलन इन दिस, लाइक अ मेन विलन इन दिस. हाँ, दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म. पहली मेरी फिल्म गुलाबी थी सचिन खेड़ेकर जी के साथ, एंड दिस माई सेकेंड डेब्यू इज ऑन. लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि राहुल सर ने मेरे पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे ये किरदार दिया. थैंक यू. See,
एज एन एक्टर मैं बहुत डिफरेंट जॉनर की मूवीज़ देखती हूँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस की मूवी देखती हूँ, बिकॉज हर मूवी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. नाउ डेज नो लैंग्वेज इज स्मॉलर, सो आई थिंक हर लैंग्वेज से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. सो आई थिंक द मोर यू वॉच इट द बेटर इट इज़. बड़े स्टार्स का ये कमेंट करते हैं कि हिंदी फिल्म से रीजनल फिल्म के कंटेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं. Yes, definitely. मराठी फिल्म के, तो आप कितनी इस बात से? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि आप कोई भी मूवी देखिए रीजनल से तो उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और अल्टीमेटली बाद में वो बॉलीवुड में भी बन जाती है. सो हम हर तरफ के लैंग्वेजेस को उसे केटर कर लेते हैं एक्चुअली. ऐसी कोई मराठी फिल्म में ऐसा तो मराठी आर्टिस्ट आपको बहुत इंस्पायर करता है? एक्चुअली बहुत सारे हैं एंड वन ऑफ अ वेरी सीनियर एक्टर्स मिस्टर सचिन जी, एंड आई रियली आई हैव बीन सीइंग हिम not only in Marathi films but also in Hindi films, and I always look up to him, so I think I really look up to him. और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए, किस तरह का रोल एक्सेप्ट करेंगे आप? डेफिनेटली समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड जैसे आपने पहले बोला है कि रीजनल फिल्म्स में बहुत डिफरेंट होती है, जो कंटेंट होता है मूवी का बहुत अच्छा होता है. सो इफ आई गेट अ गुड कंटेंट मूवी आई विल डेफिनेटली डू इट. And right now what's happening in your professional life? A lot of things happening and soon you'll get to know about it. Thank you. एंटरटेनमेंट में एंटर कर रहे हैं आप, एक फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप क्या उम्मीदें लेकर आ रहे हैं? किस तरह के कास्ट आपने चूज किए हैं फिल्म के लिए, क्या-क्या शॉर्ट में प्लॉट बताइए, क्या-क्या है स्टोरी के अंदर, क्या देखने को मिलेगा? कास्टिंग स्मिता है, सतीश है, विनीत शर्मा जी है एंड उदय टिकेकर जी है. सतीश राजवाड़ी इज देयर. सर जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी तो क्या लगा कि चलो मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा, फिल्म में दम लगा था? स्क्रिप्ट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा एंड जैसे गुड स्क्रिप्ट, और मतलब कुछ लगा कुछ बनने जैसा था. तो वी आर रियली मतलब लग रहा है कुछ अच्छा जगह और कुछ काम बनेगा. सर हम भय के बारे में बात करते हैं, वाणी में जैसे हिंदी में डर कहते हैं, जिसे हम जो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ उस डर का सामना करना पड़ता है. तो क्या कहना चाहेंगे इस डर के बारे में, किस तरह से आप पब्लिक को, अपनी जनता को इस तरह से इम्पैक्ट देने वाले हैं? काफ़ी अच्छी तरह डरा पाएंगे और कुछ कॉमेडी की टाइप का कॉमेडी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं. भट्ट और महेश भट्ट को भी फॉलो किया है क्योंकि वो लोग काफ़ी इसके माहिर खिलाड़ी रहे, तो क्या उनसे? नहीं, उनसे थोड़ी हटके फिल्म है. सर हम बात करें, आपका बर्थडे भी है, तो किस तरह का आज पोस्टर लॉन्च में क्या कहना चाहेंगे? एक ही दिन पे आपका बर्थडे भी आ रहा है, लॉन्च भी कर रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि किस तरह का एक्साइटमेंट है आज के दिन को लेकर? एक्साइटमेंट तो है काफ़ी, और मतलब हर चीज़ मतलब एक साथ जुड़ के आई है, तो मतलब फिल्म भी है, बर्थडे भी है, मतलब दोनों एक ही साथ सेलिब्रेट करते हैं. सर हम बात करें तो आपने कभी अपनी लाइफ में कभी डर का सामना किया है? अपनी लाइफ बहुत बार. कभी वीडियो से भी डर लगता है, तो क्या ऐसा किया है वैसा? ओके. सर आज के बारे में बताइए, आज पोस्टर लॉन्च होने वाला है, तो क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, बताइए. मुझे बेहद खुशी है कि आज भय इस फीचर फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो रहा है. ये मेरी राहुल के साथ सेकंड फिल्म है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. एक आदमी के फियर्स के बारे में बात करता है और कैसे ये फियर्स वर्क होते हैं सबके बारे में, सब उसके आजू बाजू के लोगों के बारे में. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग सब्जेक्ट है, डायनामिक है. राहुल भाटनकर ने बहुत स्टाइलिशली शूट किया है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पोस्टर लॉन्च टुडे. आज अपने रोल के बारे में बताइए सर, किस तरह का रोल है आपके इस फिल्म में? मेरा रोल इस फिल्म में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का है. इट्स अ नो नॉनसेंस पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर. बहुत डायनामिक रोल है एंड मुझे भी किरदार निभाने में बहुत खुशी हुई है. आपने कभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे आप डर गए हो, आपको ऐसा वो चीज़ भूल ना पाए हो आप? काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में रहती है, लेकिन विथ एज यू स्टार्ट ओवरकमिंग देम. इस फिल्म में जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो जिस चीज़ से डर रहा है, आई एम होपिंग ऐसा डर किसी के मन में ना आए. सर फिल्म के बारे में अगर बात करें, कब लॉन्च होने लाइक पर्दों पे दिखाई देगा, पब्लिक इसको देख पाएगी? इसके बारे में तो फिल्म के जो निर्देशक है राहुल भाटनकर वो आपको ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल ख़त्म होने के पहले सिल्वर स्क्रीन्स पे हिट हो जाएगा. आज सचिन जी जो प्रोड्यूसर का बर्थडे भी है, तो क्या विशेष कुछ कहना चाहेंगे? आई एम विशिंग सचिन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और आपने एक ऐसी मराठी फीचर फिल्म बनाने शुरू की है. आई एम वेरी हैप्पी. मराठी फिल्म का मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत डिफरेंट फिल्में आ रही है. तो सचिन जी आपके इस बर्थडे पे पोस्टर लॉन्च हो रहा है. आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर लाइफ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.